Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I am with a new lecture for 10th class. This is chapter number 1 and page number 4. And the title of the chapter is Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Here we are in the middle of the last paragraph, and I hope you have no problem in the previous chapter. So regrettably, this is page number 4, paragraph number last paragraph from the middle. Like this 1, 2, 3. This is the 5th line of last paragraph. Okay, so I'm going to read it. You are going to listen to me carefully, and then we will discuss the difficult words. Regrettably, we squander our hard-earned resources on unwanted luxurious items simply to gratify our sense of pride and superiority over others. If we make simplicity and humility a part of our personality, our social behavior will be considerate and genuine. Our happiness will be unadulterated, and we will not recoil our heads in pride and bow them in humility and affection. And the first difficult word is regrettably. Regrettably means feel sorry. अफसोस के साथ जिसे हम कहते हैं. And squander means to waste. ज़ाया करने को बोलते हैं. And this is a verb, okay? And hard earned, the money that someone has earned with struggle, with pain, difficulty. Okay? And unwanted, something which is not needed. Which is not needed, and it is an adjective. And luxurious, this is what this word is, this luxurious, and it means something which is expensive, comforting, but expensive. Okay, people can survive without luxuries. Okay, not basic needs. Gratify means to satisfy, to please, and it is a verb. Personality to the personal characteristics of someone, of a person. Okay, behavior is a way of dealing with things. Behavior, answering or questioning or dealing with people. And considerate is an adjective. It means thoughtful, akalmandana. And genuine means real, original, saying, asli. And unadulterated means not mixed, pure. And it is an adjective. And recoil means to draw back, to go back. Okay, and bow means to rinse, to recline. And humility, you know about this, we discussed about it. Modesty and affection means love. These are the difficult words. And now I suggest you to pause the video for a while, write the meanings, and then listen to the lecture. So regrettably we squander. The translation. अफसोस के साथ हम ज़ाया करते हैं our this is not our, okay, our hard-earned resources, मुश्किल से कमाई हुई दौलत, on unwanted luxurious items, गैर ज़रूरी पुरआसाइश चीज़ों के ऊपर, simply to gratify our sense of pride, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, and superiority over others, और दूसरों के ऊपर फ़ौक़ियत ज़ाहिर करने के लिए. If we make simplicity and humility part of our personality, अगर हम सादगी और आजिज़ी को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लें, our social behavior will be considerate. हमारा माशरती रवैया जो है वो अक्लमंदाना हो जाएगा, and genuine, और वो हकीकी होगा. हमें बनना नहीं पड़ेगा, हमें लोगों को के लिए और बनने के लिए हमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा. बनने से मुराद ये नहीं कि आप अपने आप को डेकोरेट ही करते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप जिसकी आप सकत नहीं रखते, जो कि आप कर नहीं सकते. ठीक है, आप वो काम भी करते हैं किस चीज़ के लिए? लोगों को दिखाने के लिए. ठीक है, तो ये कहते हैं कि उस चीज़ से हम बच जाएंगे, और हम जो है जो अंदर से होंगे वही बाहर से होंगे. और इस जो अंदर और बाहर के जो अंदर बराबर कर लेगा, ठीक है, उसकी ज़िंदगी सुकून में होती है. अगर आप ऊपर से जो है पुरासाइश देख रहे हैं और अंदर आपकी जो है वो आग लगी हो, गुर्बत हो, और आप अपनी ज़रूरियात भी मुकम्मल ना कर सकें, मगर मोहल्ले में लोगों को, दोस्तों को आप दिखा रहे हो कि आप बहुत अच्छे खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, तो ये जो है वो आपको जो है एक मुसलसल अजाब की कैफियत होगी. तो ये वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हमें जो है वो सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी अपनानी चाहिए, और ये राइटर हमें कह रहे हैं कि अगर ये हम अपना लें तो हम अपने माशरे को इन बुराइयों से बचा लेंगे. तो gratify our sense of pride and superiority over others. If we make simplicity and humility a part of our personality, our social behavior will be considered and genuine. असली होगा. Our happiness will be unadulterated.
हमारी खुशियाँ जो होंगी वो मिक्स नहीं होंगी, वो जो है वो नकली नहीं होंगी, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। हमारी जो है खुशियों में मिलावट नहीं होगी। मिलावट से ये है कि हमें जो है वो लोगों के सामने जो है वो हंसना नहीं पड़ेगा झूठा, हमें लोगों के सामने बनना नहीं पड़ेगा झूठा। अगर हमें जो खुशी जो मैसर होगी, जो अंदर से होगी, वही हमारे चेहरों के ऊपर होगी। हमें ख़ुद को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें मुख्तलिफ चेहरे ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे देखते हैं। एंड वी विल नॉट रिकॉयल आवर हेड्स एंड प्राइड, और हम अपने सरों को गुरूर के साथ ऊंचा नहीं करेंगे, पीछे की तरफ नहीं लेके जाएंगे। रिकॉयल में पीछे लेके जाना, एंड प्राइड गुरूर से, एंड बाउ देम इन ह्यूमिलिटी एंड अफेक्शन, और आजिज़ी के साथ और मोहब्बत के साथ उनको हम क्या कर देंगे, झुका देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है ये सबक मिलता है। और हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन डू वी हैव इन आवर एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 6 and read the last paragraph. This is question number 4. Read the last paragraph of lesson Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam with comprehension and write down the main ideas supporting details of the paragraph. अब इसका जवाब जो है आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, खुद से मुराद ये है कि आपके पास जो है आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर को समझा, और इस चैप्टर की रोशनी में आपने जो चीज़ें समझी हैं, जो चीज़ आपकी समझ में आई हैं, वो आपने एक पैराग्राफ की सूरत में लिखनी है। पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है? पैराग्राफ आपको सिंपली मैं बता दूं कि आप जो है वो पैराग्राफ आपकी कम से कम से 8 से 12 लाइनों के दरमियान के जो है वो आपका पैराग्राफ हो, जो आपके यहाँ से शुरू हो, पूरी जो है वो लाइनें हो, यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो। 8 लाइनों से मुराद मेरा ये नहीं है कि आपने 8 लाइनें फिर लिखी हो, मीन्स 8 to 12 सेंटेंसेस, 10 से 8 से 12 तक की आपके पास सेंटेंसेस हों, और जितनी भी सेंटेंसेस हों वो रेलेवेंट हो, यानी जो वो इस क्वेश्चन को आंसर करती हैं, ये वाली बात होगी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज फॉस्टर सिस्टर। ये हमने पिछले लेक्चर में ये कवर कर लिया था। आपने घर में करना ये है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें से आपके पास ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आ सकते हैं, आपने ये सारे जो है वो घर में कर लेने। जो समझना है वो आप पीछे किताब में देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय फॉर नाउ।